channel, and today I will give you some tips, helpful tips which will definitely work you for class 9 students. And I'm giving you all this trick or tips because I myself have experienced these tricks, and I have seen that these tips really worked for me. So yes, first question which arises, so what are the perfect ways to study social science? Let me tell you first geography one. See, geography is all about maps. Once you learn the map by heart and have the true image of it in your heart, or way you can remind the or frame whole image while closing your eyes, you will never lose the marks in the geography. This one can do when he or she is deeply observing the map, while reading or learning matter to the book, relating locations, each and everything in the map, either phenomena or the facts. And one more tip I would like to suggest you or give you is, whenever this condition comes that you need to learn the location of 3 to 4 things like silver, iron or gold, so first thing is I should see, is there any common location which I can learn easily. If there is any common location, you need to learn that first. It is very helpful क्योंकि वो आप काफ़ी दिनों तक for longer period you can remember that, and it's obviously easy to learn, right? So generally many of us find it difficult to learn it, or also somewhere boring, but it's not that. One should learn the events as stories, just like grandma dictates any story and we remember it for the years. This will work and is more easy and the memorable tip. We don't have to do rote learning or ratification, what we call it. And yeah, this is what. And if you ask me about the dates, I would say learn 4 to 5 dates in a day. Don't just do mashup of so many dates in your mind. Okay, so learn 4 to 5 dates, and when you are going to sleep, just recall them so that you can ensure, yeah, you have learned them quite well. Then when you are waking up in the morning, just recall them again. So yeah, this is the tip number 2 of history, because yeah, I feel it works a lot. Okay, तो अब हम आ जाते हैं हाउ टू मेक साइंस एन ईजी सब्जेक्ट. सी पर्टिकुलरली वी फेस प्रॉब्लम इन फिज़िक्स, जो कि मैंने खुद ने भी फेस की थी, और मैं पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने कैसे उस चीज़ को सही किया, व्हाट आई डिड टू इम्प्रूव माई फिज़िक्स, हाउ डिड आई वर्क ऑन दैट, आई एम गोइंग टू टेल यू. So we won't be able to build the concept strong by just reading it through the NCERT book. We need to refer the one topic from other books, right? Because in the NCERT there is concise matter, so in one go one can never get the concepts right away in a quick manner. So yes, many would, I would prefer the best refresher is Lakshmi Singh and Manjeet Kaur, I would say, because I have used that one, and many would say that Lakshmi Singh and Manjeet Kaur is not a good book. So let me tell you guys, I would say it is not for competitive level, just that the concept, if you go through Lakshmi Singh, no, you will not have to refer other sources, and it would be able to build the strong concepts because it contains a detailed explanation, man. So much examples are there, so big vast explanation is there, means you will feel now I have got the topic, like बहुत अच्छे से आ चुका है आपको, तो वो वाली चीज़ हो जाती है, बहुत अच्छे से आ जाता है. अब जब हमने SST और साइंस पढ़ ही लिया है, तो लेट मी टेल यू हाउ टू मेक हाउ टू रिवाइज द थिंग्स फ्रॉम वेयर यू नीड टू रिवाइज. तो देखिए, अगर आपको क्विक मोमेंट पे जस्ट डे बिफोर द एग्ज़ाम लर्न करना है, तो देखिए रिवाइज करना है तो देखिए क्या करोगे आप, कुछ दिन पहले, मतलब जब मैम चैप्टर पढ़ा चुकी हैं और आप नोट्स बना रहे हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, जस्ट आपको लिखना नहीं होता है, जस्ट बुकिश लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हो, इट्स नॉट कॉल्ड द नोट्स. व्हाट यू नीड टू डू इज़, लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हो, इट्स नॉट कॉल्ड द नोट्स. व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं एक्चुअल में, जो उससे मैं नोट्स कहती हूँ. देखिए, आप पूरा जो है चैप्टर के थ्रू जाओगे, एट द रिविजन टाइम यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन द 90%. सो आई एम गिविंग यू द ट्रिक फ्रॉम विच यू कैन डू वेल राइट इन द SST और साइंस वन. तो आप जब नोट्स बना रहे हैं, लाइक आप उसके थ्रू जा रहे हैं, यू आर रीडिंग द चैप्टर, मीन वाइल आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस लिखते जा रहे हैं,
ठीक है, क्वेश्चंस लिख रहे हैं, अपने क्वेश्चंस लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉल, बिग, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब लिख दो आप। ऑब्जेक्टिव टाइप भी लिख डालो, ये कहीं भी आपके जो है स्कोप ना रहे कि मार्क्स लूज कर सकता है इंसान आपका, तो नहीं होना चाहिए ऐसे। तो आपने लिख लिए, अब आपने अच्छे से उसको देख लिया, अब आप इंश्योर करो कि आपने लर्न भी किया है क्या, मतलब कुछ आपने गेन किया है क्या, वो जो लिखा है आपने इतना, क्या आप कुछ गेन कर रहे हैं उससे, तो आप एक बार अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए। You need to ask the questions, same questions which you have written in the copy, you need to ask from yourself, right? To ensure that yes, you can do it and you are doing it actually. सो आपको ये नहीं करना है कि चलो बाद में कर लेंगे या फिर नहीं, अभी तो सिर्फ नोट्स लिखते हैं जैसे छोटे बच्चे जैसे, अभी सिर्फ करेंगे और बाद में याद कर लें, नॉट एट ऑल, दिस विल नॉट वर्क फॉर यू एट ऑल। वॉट यू नीड टू डू इज़, देखिए नाइन्थ में पाइल्ड अप आपको बिल्कुल नहीं करना। नाइन्थ में आप जैसे जैसे चीज़ें होती जाती है आप करते जाइए, नहीं आता समझ, जैसे कोई सिचुएशन है जिसमें आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, नो मैटर, कुछ नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, आप चीज़ों को खुद से समझिए, रिफ्रेशर्स हैं आपके पास उनके थ्रू जाइए, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेबसाइट्स पे चल जाइए, बट उस पर ज़्यादा फंस जाओगे तो ठीक है, सर्च कर लो, जो आता है उससे थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो ऐसी चीज़ों से आप कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो दूसरी बुक से देखिए, राइट, गूगल में। हम सभी बहुत परेशान रहते हैं और हम सभी का एक कॉमन स्टेटमेंट रहता है, मैथ्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो देखिए इसे आसान बनाने के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जो भी कंसेप्ट्स आप पढ़ते हैं पहले उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि आपका जब कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होगा तो आपको कितने भी स्टैंडर्ड के लेवल होंगे, स्टैंडर्ड लेवल पे अगर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप इजीली कर पाओगे। और डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही वाली चीज़ है। और जो भी फॉर्मूलाज आप यूज़ करते हो तो वो आपको एक बार पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, बस, और ज़्यादा मैथ्स में होता नहीं है कुछ। प्रैक्टिस करो और वो चीज़ मतलब ईजी हो जाती है, फिर कितना भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है हमारे, कितना भी हाई लेवल का, हम कर लेते हैं उन चीज़ों को। अब आते हैं हम टिप्स फॉर इंग्लिश पे। देखिए इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट, इट नीड्स प्रैक्टिकल वर्क मोर देन राइटिंग वर्क, जैसा कि मैंने फील किया है। देखिए आपको क्या करना होता है, इंग्लिश में आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है। You need not to, whenever you think that yeah I need to improve the English, you are just searching the hard boards of the Google. It's not the way to learn the English. I'm telling you again, right? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये करना छोड़ दीजिए, नहीं है, आप पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि आप मतलब बेसिक से स्टार्ट करिए। rather than speaking elegant word, you should use the very beautiful in good manner, right? Why are you just going at that high level? Start from the basic, right, and do the practice first, मतलब stand in front of the mirror and do lot of practice. I think you should do in a day, you should do 5 minutes or so, मतलब डेली का 5 मिनट्स तो कर ही सकते हैं। तो आप मिरर के आगे खड़े हो जाइए, स्पीच दीजिए, कुछ भी करिए, कुछ भी बोलना है आपको, नो मैटर वॉट, बस बोलना है आपको, ठीक है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि राइटिंग स्किल में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसके लिए बोलूँगी राइटिंग स्किल में अगर आपको परफेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, डेली की हाफ पेज डायरी एंट्री लिखिए। देखिए ट्रैक पे रहना है, इफ़ यू वांट टू बी ऑन द ट्रैक, मतलब आपको ट्रैक को बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो क्या करो, ऑल्टरनेटिव स्टार्ट ऑल्टरनेटिव डेज राइटिंग, ओके। उसमें क्या करा, आज लिखा कल नहीं लिखेंगे, परसों लिखेंगे, तरसों नहीं लिखेंगे, तो ऐसे होता है। तो इससे आप यू विल बी ऑन द ट्रैक फॉर लॉन्गर टाइम, राइट। सो इफ़ यू वांट टू गो समवेयर फॉर द मैरिज पार्टी और एनीवेयर, ओके, सो आप उससे थोड़ा पहले लिख के रख लीजिएगा। बट इफ़ डेली लिखने का आप रखते हो तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू बी ऑन द ट्रैक फॉर लॉन्गर टाइम्स, सो इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। बट मैंने आपको ये 2-3 टिप्स दे दी है, तो इससे आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। और इंग्लिश हमेशा उन लोगों के साथ बोलिए जिन लोगों से आप थोड़े ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं, तो उनसे मतलब कम फैमिलियर जिनसे होते हो आप, तो डरना नहीं होता है कि क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोल रही हूँ या नहीं, एम आई स्पीकिंग गुड और एम आई मेकिंग सम मिस्टेक, शुड आई स्पीक और नॉट, दीज क्वेश्चन शुड नॉट अराइज इन योर माइंड। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का आगे बढ़ के उसका उस चीज़ से लड़ोगे नहीं, तब तक वो चीज़ें नहीं आएगी, कब तक आप शर्माते रहोगे।
आप उनसे फ्रेंड से बोल रहे हो इंग्लिश में या उनसे बोलने से कोई इंग्लिश ऐसा, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि आप पब्लिक के सामने बोलते हो तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है नहीं मैं नहीं बोल सकती, राइट। तो उस चीज़ को आपको डर को अलग करना है, तो आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। चलो चलते हैं हम एंड की तरफ। ट्राई दीज tips once, you will surely overcome your difficulties in following subjects. All the best and follow it, and don't forget to comment below if these tips really work for you all. Thank you so much guys. Thank you.